Okay, so in our previous class we have seen how to import a CSV file. Okay, how to use CSV module. Okay, so basically our today's session we will see how to import date and time library. Okay, so we are working on today which library? Date and time. Okay, so basically a date and time in Python is not a data type. Okay, date क्या है आपका? You are not having a data type in Python. Okay, so whether we are having a library called data time to work with dates. Okay, dates object. Okay, so how to import a date and time library? Simple है, देखिए simple. If you want to import any kind of, if you want to import date and time library, simple, you have to type import and type what? Date time. ठीक है, this will help you to import a date time library. Okay, simple, you have to run shift enter to run this cell. Okay, next thing, what you have to do? सिंपल, इसके अंदर जो भी फंक्शंस है, जो भी मेथड्स है, you have to use that methods. Okay, suppose if you want to see the present date and time, simple है, simple, I am taking x as a variable equal to, okay, date time library. Okay, dot, in this date time library we are having a method called date time to get the date time. Okay, then उसके अंदर और एक मेथड है called now. Okay, simple, this will help you to get the date and time, present date and time. Okay, shift enter करूंगा. अब यहाँ पर print of what? X करेंगे हम to get the present date and time. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023, the date format of the date format of the Python is nothing but year, month and day. Okay, and the time is nothing but hour, minutes and seconds. ये आपके milliseconds है. Okay, clear with this one? Any doubt how to get a date time? ठीक है, तो basically if you want to work with date and time, तो simple है, देखिए you are having different kinds of methods or modes बोल सकते हैं आप. ठीक है, which will help you to get the if you want to get only year, so you can get only year. If you want to get the month, you can get the month. If you want to get the day, you can get the day. Okay, तो यहाँ पर अब suppose I want to get if I want to give the day, date. Okay, so simple, I can go like this x. So here you don't have to again and again you don't want to import this date and time library. Simple, one time आप अगर import कर लिए, then you can go with this one. So y equal to date time dot date time, and instead of now I can give the day. ठीक है, date दे सकता हूँ मैं. तो simple, what is the format of date? Year, so I have to give year 2023, comma, then you have to give the month. Month is nothing but 0 1, and मैं यहाँ पर I am going with previous date. Okay, that is nothing but 30, so I am going with 30. Enter करूंगा, तो अब यहाँ पर print of y करूंगा मैं, print of y, तो ये आपको previous डे की डेट मिल गया. सेम लाइक एसक्यूएल के अंदर हम क्या कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शन, करंट डेट करंट टाइम, हम वहां पर डेट मैनिपुलेट कर रहे थे. ओके, सेम इन पाइथन यू हैव टू गो लाइक दिस. ओके, इफ यू वांट टू वर्क विद एनी डेट्स, ठीक है, एनी डेट डेटा सेट, यू कैन गो विद द डेट एंड टाइम लाइब्रेरी. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स है. ठीक है, strf time मेथड है, that will help you to get the methods. Like suppose if you want to get the weekdays, ठीक है, तो then you have to go like this, y equal to, ठीक है, again I am taking y, तो यहाँ पर लिखूं to get week day. ठीक है, to get weekday,
ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल दिस डेट एंड टाइम, तो मैं सिंपल वीक डे मालूम करना है। आई वांट टू गेट द वीक डे ऑफ प्रेजेंट डेट, ठीक है। तो सिंपल यू हैव टू गो लाइक दिस, यू कैन टेक द वेरिएबल एज y इक्वल टू देन डेट टाइम, ठीक है, डॉट डेट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ, ठीक है। ये जो हमारी जो प्रेजेंट डेट है वो किसमें स्टोर हो जाएंगी, y के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रिंट करते टाइम आपको यूज करना है y.strf टाइम, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ मेथड विच विल हेल्प यू टू गेट द वीक डेज और मंथ डे, ठीक है, नेम ऑफ अ मंथ और नेम ऑफ अ वीक डे, नेम ऑफ अ डे, okay. Next, in parenthesis you have to go with quotations percentile b, percentile capital B. This will help you to get the month, okay. Okay, sorry, यहाँ पर weekdays के वास्ते you have to go with a, okay, small a. तो यहाँ पर देखिए today is nothing but Tuesday, that's why it's showing Tuesday and it is in the form of short, ठीक है। अगर आपको long होना है तो simple you can go with print of what, y.strf टाइम, ठीक है, सॉरी y strf टाइम, एंड यहां पर आपको कोटेशंस में परसेंटाइल ऑफ कैपिटल A देना है टू गेट द फुल वीक डे, ओके। स्मॉल a से यू आर गेटिंग शॉर्ट वीक डे एंड कैपिटल A से यू आर गेटिंग लॉन्ग वीक डे, ओके। अब सपोज आपको फाइंड आउट करना है ये वीक का कौन सा डे है, लाइक हमारा वीकेंड या फिर वीक कब से स्टार्ट होगा, संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे। तो इफ यू वांट टू गेट लाइक कौन सा वीक डे है हमारा, ठीक है, कौन सा वीक डे नंबर है, तो देन यू कैन गो विथ प्रिंट ऑफ y.strf टाइम। टाइम में आपको क्या करना है, कोटेशंस में w देना है, स्मॉल w, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहां पर आप सॉरी परसेंटाइल w, तो यहां पर देखिए ट्यूसडे क्या है, सेकेंड, क्यों सेकेंड है ये, सेकेंड है, राइट। तो यहां पर क्लियर है आप लोगों को ये चीज, कुछ डॉट है यहां पर आप लोगों को, any dots, okay. Suppose if you want to get month name, okay, simple है, यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ व्हाट, strf टाइम, ठीक है, एंड इन कोटेशंस यू हैव टू, अगर आपको फुल मंथ नेम जाना है तो यू कैन गो विद b, ओके, परसेंटाइल y डॉट, ओके, y डॉट strf टाइम y डॉट, तो जनवरी इट विल गेट यू द फुल मंथ नेम। अगर आपको शॉर्ट मंथ नेम होना है तो सिंपल प्रिंट ऑफ y डॉट strf टाइम, ठीक है, एंड इन कोटेशंस यू हैव, यू कैन इन परसेंटाइल विद स्मॉल b टू गेट द, क्या हो गया यहाँ पर, strf टाइम, ठीक है, टू गेट द शॉर्ट मंथ नेम, ओके। अगर आपको सिर्फ ईयर होना है, ठीक है, शॉर्ट ईयर और लॉन्ग ईयर में आप लोगों को आई थिंक यू नो द डिफरेंस। शॉर्ट ईयर में आपको सिर्फ दो डिजिट्स में आपको नंबर मिलता, वेरएस लॉन्ग ईयर में आपको क्या मिलता, 4 डिजिट्स में। तो सिंपल है, देखिए अगर आपको शॉर्ट ईयर लाना है तो प्रिंट ऑफ व्हाट, y.strf टाइम, ठीक है, एंड इन कोटेशंस परसेंटाइल के साथ आपको स्मॉल y देना है टू गेट द शॉर्ट, यहाँ पर लिखूंगा टू गेट ईयर, ठीक है। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 इज अवर नथिंग बट करंट ईयर, ओके। अगर आपको फुल ईयर होना है तो सिंपल प्रिंट ऑफ y.strf टाइम ऑफ, परसेंटाइल में आपको कैपिटल Y यूज करना है। एंटर करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं यू विल गेट द व्हाट, 2023 फुल ईयर, ओके।
वैसे ही अगर आपको क्या करना है, लाइक टाइम्स में ऐड करना है और टाइम, या फिर आपको और आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास है, देखिए अगर आपको और आर फाइंड आउट करना है तो सिंपल प्रिंट, हम यहाँ पर वाई करेंगे, प्रिंट ऑफ वाई। तो यहाँ पर आप फुल डेट देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं। टाइम इज नथिंग बट 13/11, क्या है, 20/13/11, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और आपको प्रिंट कराना है तो सिंपल प्रिंट ऑफ y डॉट strf टाइम एंड देन इन परसेंटाइल you have to give the capital H to get the R. Okay, Yes. clear edges how to get the R. तो यहाँ पर बहुत सारे लाइक PM है, AM PM फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और या फिर मिनट्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अगर मिनट्स फाइंड आउट करना है तो देन यू कैन, यहाँ पर मैं लिखूंगा इजी वे में, टू गेट R, ओके। एंड यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टू गेट मिनट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट ऑफ व्हाट, y डॉट strf। तो बेसिकली जितने भी हम ये जो नेम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डेट, तो किससे कर रहे हैं हम, strf टाइम मेथड से, ओके। तो अगर यहाँ पर मैं दूंगा परसेंटाइल m, कैपिटल M, इट विल हेल्प यू टू गेट द मिनट्स, ओके। तो ये नॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मिनट क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है हमारा मिनट 18, बट ये जो 13 है ये कब हम स्टोर कर रहे थे, y के अंदर 13, ठीक है, 2013 में स्टोर कर रहे थे हम, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 13 ईयर, जो हमारी ऑलरेडी स्टोर है वो वैल्यू शो कर रही है आपको, ओके। नेक्स्ट अगर आपको चेक करना है वेदर इट इज AM और PM, तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर यू कैन गो विद दिस टू गेट AM और PM, टू गेट AM स्लैश PM, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करना है आपको प्रिंट ऑफ y डॉट strf टाइम ऑफ व्हाट, कोटेशंस में यू हैव टू गो विद परसेंटाइल स्मॉल p, ओके। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करता, देखिए PM। अगर AM है तो AM शो करेगा और PM है तो PM शो करेगा, ओके। अगर आपको सेकेंड्स लाना है तो इफ यू वांट टू गेट सेकेंड्स, टू गेट सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ पर आप प्रिंट यूज करेंगे, प्रिंट ऑफ व्हाट, y डॉट strf टाइम ऑफ व्हाट, परसेंटाइल कैपिटल S, सिंपल। अब देखिए आवर्स को क्या करना है, H लिखना है, मिनट्स को M लिखना है, कैपिटल M, और सेकेंड्स को S करना है। तो यहाँ पर आप 11 सेकेंड्स में, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको चेक करना है लाइक कौन सा हमारा वीक है, लाइक हमारे पास वीक्स रहते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, थर्ड वीक ऑफ जनवरी, फोर्थ वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। अगर आपको वीक फाइंड आउट करना है फ्रॉम अवर डेट, तो सिंपल है, देखो यहाँ पर टू गेट वीक। तो टोटल वीक्स कितने रहते हैं हमारे पास, 4 वीक्स रहते हैं, मंथ्स में नहीं, ईयर में 52। तो वो अगर चेक करना है कौन सा वीक चल रहा, तो देन यू कैन गो विद टू गेट द वीक नंबर, ओके। तो सिंपल है, प्रिंट ऑफ व्हाट, y dot strf time, then in percentile you have to go with capital U to get the week number. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 चल रहा, 05 चल रहा, चेक करो कब से स्टार्ट हो, 5 चल रहा, राइट। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 5, ओके। 2023 का ये वीक कौन सा है, 5th वीक है, ओके। W से भी आएगा, W से वीक आएगा, नंबर आएगा, हाँ, W से भी वीक नंबर आता। अब यहाँ पर चेक करें आप, लाइक प्रिंट ऑफ व्हाट, y डॉट strf टाइम एंड देन परसेंटाइल W से भी आपको वीक नंबर शो हो रहा। बेसिकली ये चीजें मैं क्यों शो कर रहा हूँ, बिकॉज आपको जब भी आप एक डेटा सेट पे वर्क करेंगे फॉर एनालाइजिंग द डेटा, फॉर समराइजिंग द डेटा और टू क्लीन द डेटा, दैट टाइम ये आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। क्लियर विद दिस वन, कुछ डॉट है इसके अंदर अभी बहुत सारे हैं,
तो सिंपल आप परसेंटाइल A to Z से आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, Yes. तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ डॉट है आप लोग? एनी डॉट्स अप टू हियर? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम हमारा पांडास मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। That is nothing but if you want to analyze the data, if you want to create the data, or if you want to manipulate the data, any data set, then you can go with this pandas library. तो basically pandas library क्या है? What is pandas? ठीक है, what is pandas? What is pandas library? So आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, it is a Python library, it is a Python module बोल सकते हैं, module which helps to work with data sets, ठीक है, which help to work with data sets. ओके, तो जितने भी आपके पास not only a single data set like a CSV, you can manipulate any kind of data means file format. ठीक है, अगर आपको एक्सेल की फाइल मैनिपुलेट करना है तो देन यू कैन गो विद दिस पांडास। अगर आपको CSV की फाइल, SQL की फाइल और PDF की फाइल, XML की फाइल, जितने भी डेटा फाइल्स है, यू कैन मैनिपुलेट विद द हेल्प ऑफ पांडास मॉड्यूल। ओके, तो basically pandas is mostly used for EDA. आप लोग सुने होंगे, what is EDA? Exploratory data analysis. Okay, exploratory data analysis is nothing but it will help you to find, means with the help of this you can find the patterns and trends from the data set. Like आप वहां पर स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं आप, लाइक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन और समथिंग, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूज करते हैं। और it also helps to analyze the data, ठीक है, clean the data, ठीक है, next explore the data and what last, to manipulate the data, ठीक है। तो ज्यादातर हम क्यों यूज करते हैं? फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। नॉट ओनली हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, वी कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम। बेसिकली डेटा फ्रेम इज नथिंग बट द व्हाट? टेबल। ओके, तो अब सपोज इफ यू वांट टू सी द वर्जन ऑफ दिस पांडास, तो सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी हम देखेंगे। ओके, तो सिंपल है, देखिए इंपोर्ट, यू हैव टू यूज द इंपोर्ट फंक्शन। अगर आप लोगों के पास नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग, मींस अभी तक आप लोग पांडास पे वर्क नहीं करे, देन यू हैव टू गो लाइक दिस, पिप इंस्टॉल पांडास। ओके, यू हैव टू गो लाइक दिस। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पर क्या शो करता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल के, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर क्या शो करता हूँ, सक्सेसफुली इंस्टॉल बोल के शो करता हूँ। नहीं यूज करेंगे, परसों बताया था मैं आप लोगों को। ओके, एक बार अगर आप इंस्टॉल करिए, देन यू डोंट हैव टू इंस्टॉल अगेन एंड अगेन। तो सिंपल, जब भी आपका एक न्यू सेशन क्रिएट होता, यू हैव टू गो लाइक दिस, इंपोर्ट पांडास एज। तो ये पांडास, एवरी टाइम आई डोंट हैव टू यूज दिस होल नेम, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद एलियास। ओके, एज यहाँ पर लिख रहा हूं मैं PD। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर और मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट जो भी पाइथन यूज कर रहे हैं, उन लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर फुल नेम इंस्टेड ऑफ फुल नेम मैं यहाँ पर PD यूज कर। तो सिंपल है, इट विल हेल्प यू टू इंपोर्ट अ पांडास लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया, दैट्स व्हाई इट नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ एरर। ओके, सिंपल, अगर आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर बताया था, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी यू कैन, बेसिकली डिक्शनरी इज आल्सो अ स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, ठीक है।
सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं उसको, बट अगर विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करेंगे एज फ्रूट्स। ओके, तो यहाँ पर मैं शॉप इक्वल टू, तो इंस्टेड ऑफ दैट उससे पहले हम क्या करेंगे, पांडास का वर्जन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सिंपल है, देखिए अगर पांडास का वर्जन फाइंड आउट करना है तो सिंपल प्रिंट ऑफ पीडी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 times you have to give the underscore, version underscore underscore। ओके, तो यहाँ पर टू गेट द वर्जन ऑफ पांडास। तो एज ए डेवलपर आप लोगों को आइडिया होना है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं पांडास का नॉट ओनली पांडास, अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो एसक्यूएल का, माईसीक्वल यूज कर रहे हैं तो माईसीक्वल का कौन सा वर्जन का डेटाबेस यूज कर रहे हैं आप, अगर पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं आप, पावर बीआई यूज कर रहे हैं पावर बीआई का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एक्सेल है एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, यू हैव टू नो दैट। ओके, तो सिंपल यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूंगा टू गेट द वर्जन ऑफ पांडास। आपको क्या रहा 1.4.4, तो मेरा ये ओल्ड वर्जन है, तो ओल्ड वर्जन शो कर रहा हूं। ओके, मैं अभी नहीं, मैं 2 years बैक इंस्टॉल करा था मैं ये चीज, ठीक है, तो अभी अपडेट नहीं करा मैं, आई हैव टू अपडेट दिस वन, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 1.2.4। ओके, अपडेट नॉर्मली अपडेट हो जाता, मैं उसमें रोक के रखा, मैं इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, यहां पर हम गए क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम आप लोगों को आइडिया है लाइक व्हाट एग्जैक्टली डेटा फ्रेम इज नथिंग बट अ टेबल। ओके, तो जितना भी डेटा आता हम उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी हेल्प क्या करती है आपको, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फॉर योर डेटा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सेल की बात लूंगा। एक्सेल में हमारे पास शीट्स थे, तो शीट्स के अंदर भी हम डेटा स्टोर कर रहे थे, वो टेबुलर फॉर्म में नहीं आ रहा था, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल फॉर दैट डेटा। तो हियर आल्सो वी हैव टू गो लाइक दिस वन, ठीक है। तो जो भी डेटा आता वी हैव टू क्रिएट इन अ डेटा फ्रेम। तो सिंपल हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो सिंपल डिक्शनरी में आप लोगों को, आई थिंक सर आप लोगों को बताया हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो सिंपल मैं यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर आप लोग क्या करें, लिस्ट यूज करें, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट क्रिएट करें आप लोग, नहीं बताया आप लोगों को। ओके, आई विल शो यू। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं शॉप क्रिएट कर रहा हूँ, शॉप वेरिएबल ले रहा हूँ, एंड डिक्शनरी किससे स्टार्ट करते हैं आप, फ्लावर ब्रैकेट, और फ्लावर ब्रैकेट्स में क्या रहते हैं, कीज एंड वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर मैं लूंगा फ्रूट नेम, FRUIT फ्रूट, एंड नेम मी नेम, एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंगल वैल्यू मैं यहाँ पर लिस्ट यूज कर सकता हूँ टू गेट। तो बेसिकली लिस्ट क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। तो की एक ही रहेगा बट आई कैन गिव मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा लाइक एप्पल, कॉमा दूंगा, यहाँ पर बनाना, ठीक है, नेक्स्ट पाइनएप्पल, ठीक है, ऑरेंज। तो आई हैव गिवन 4 फ्रूट्स। नेक्स्ट यहां पर मैं प्राइजेस की क्या करूंगा, और एक की वैल्यू क्रिएट करूंगा। ओके, तो हियर आई एम गिविंग प्राइजेस, प्राइस ऑफ व्हाट, दिस फ्रूट्स। एप्पल का मैं दूंगा लाइक 140, ठीक है। नेक्स्ट बनाना का मैं दूंगा 100, ठीक है। नेक्स्ट पाइनएप्पल का दूंगा मैं 350, ठीक है। और यहाँ पर ऑरेंज का दूंगा मैं 75, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा देके नेक्स्ट यहाँ पर क्वांटिटी इन किलो, ठीक है। क्वांटिटी क्या है मेरी, किलो के अंदर है, ठीक है, क्वांटिटी इन केजी, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक लिस्ट क्रिएट करूंगा ये 4 फ्रूट्स की। तो यहाँ पर मैं एप्पल लूंगा 1 किलो, एप्पल फॉर 140, तो 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बनाना 1.5 फॉर 100, ठीक है। 1.5 बोले तो 1.5 डजन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक सिंपल एक डेटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेटा फ्रेम करने की। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर मैं करूंगा लाइक बनाना, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मैं दूंगा 3 kg, ठीक है, 3 kg फॉर व्हाट 350, ओके। नेक्स्ट कॉमा दूंगा ऑरेंज 75 फॉर 1, ओके, 1 किलो ऑरेंज फॉर 75। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। अगर आपको ये चीज को प्रिंट करेंगे शॉप को, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, डिक्शनरी आएगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो यही डिक्शनरी फॉर्मेट आपको अगर टेबुलर फॉर्मेट में शो करना है, देन यू हैव टू गो लाइक दिस, ठीक है। क्रिएटिंग अ डेटा, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, यहाँ पर मैं डिक्शनरी क्रिएट करूंगा, DICT, एंड यहाँ पर मैं करूंगा क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, ओके। तो हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, सिंपल है। हम यहाँ पर PD लिए थे, PD के अंदर क्या है, एक डेटा फ्रेम मेथड है विच विल हेल्प यू टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम, ओके। देन इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द नेम ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, डिक्शनरी का वेरिएबल नेम देना है, लाइक शॉप, ठीक है। और ये चीज को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, दैट इज नथिंग बट df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड शॉप, ओके। शिफ्ट एंटर करूंगा एंड इफ आई प्रिंट df, तो यहां पर देखो जो भी हमारा डिक्शनरी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, टेबुलर फॉर्म में हो गई, ओके। क्लियर है हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम? एनी डॉट इन दिस वन? हेलो, अगेन आई विल शो यू इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस वन, ठीक है। अगर आपको डिक्शनरी का समझ नहीं आया तो आई विल गो विद लिस्ट, ओके। समझ नहीं आया आप लोगों को ऑनलाइन में? एक बार लिस्ट के साथ बताओ सर। लिस्ट के साथ हाँ यार, ओके। तो बेसिकली लिस्ट के साथ अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं a इक्वल टू लिस्ट के अंदर लूंगा वैल्यूज लाइक 12, 34, 54, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं n इक्वल टू यहाँ पर pd डॉट सीरीज लूंगा। विद द हेल्प ऑफ सीरीज मेथड यू कैन क्रिएट अ सीरीज, ओके। तो सीरीज के अंदर मैं लूंगा a कॉमा, एक a इज नथिंग बट माई लिस्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इंडेक्स दूंगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द इंडेक्स। आप लोगों को ये लास्ट में समझ जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर कॉलम्स हम किससे रिफर करते हैं, कॉलम नेम से, ठीक है। और इंडेक्स किससे रिफर कर रहे हैं, रोज से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लूंगा, INDEX इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ सीरीज ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सीरीज ऑफ वन डायमेंशनल एरे, ओके। तो यहां पर मैं दूंगा लिस्ट में डे 1 कोटेशंस में, डे 1 यहां पर मैं लिखूंगा डे 2 और यहां पर मैं लिखूंगा डे 3, ठीक है। सिंपल है। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सॉरी, pd डॉट सीरीज के प्रिंट एन, एरर क्यों आ रहा है, pd डॉट सीरीज बराबर है ना, ए इंडेक्स इक्वल टू डे 1 डे 2, तो मैं रिमूव करके डेटा फ्रेम यूज करूंगा, सीरीज नहीं, डेटा फ्रेम, ओके, डेटा फ्रेम ऑफ ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमा में आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे जो भी वैल्यूज थे वो किससे थे, सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड थे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। ये आई थिंक यहाँ पर सीरीज वाला रन नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा, ओके। मैं आपको सीरीज का एग्जैक्टली बताता हूँ मैं एक्चुअली में कैसा क्रिएट करते। एग्जैक्टली यही है ना,
pd डॉट सीरीज, सीरीज के अंदर आप यूज कर रहे ए कॉमा इंडेक्स, लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यू इज 1, इंडेक्स इंप्लाइज 3। ओके सॉरी यहाँ पर हम कोटेशंस दे दिए। ओके वी डोंट हैव टू गिव कोटेशंस हियर, ठीक है। यहाँ पर एक ही वैल्यू ले रहा था, तो अब यहाँ पर एंटर करो, आप यहाँ पर आ गया देखिए, ठीक है। डे 1 12, डे 2 34, डे 3 54। ओके क्लियर एजेस, यहाँ पर हम कोटेशंस दे दिए थे पूरे वैल्यूज के अंदर, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर वैल्यू। ओके क्लियर एजेस, कुछ डाउट है यहाँ तक? लिस्ट के साथ आप कैसा एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते? ओके विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम as well. Okay next thing, suppose we are having in data in our pandas, we are having methods like location. If you want to find a location, ठीक है, if you want to find a value from the price, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या है, प्राइस के अंदर आपको सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड इंडेक्स क्या है 350। तो सिंपल आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लॉक मेथड यू कैन लॉक LOC, ठीक है। लॉक मेथड हेल्प्स टू गेट अ वैल्यू, ठीक है, गेट अ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इट इज लाइक अ इंडेक्सिंग, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आपको 130 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है, 350 फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यू कैन गो लाइक दिस, df डॉट लॉग, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको क्या करना है, कॉलम नेम देना है। कॉलम नेम इज नथिंग बट प्राइस, ये 350 की प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्राइस, एंड द इंडेक्स इज व्हाट 2। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 देना है। एंटर करेंगे, प्राइजेस है शायद सर, प्राइजेस है शायद, देखिए सर प्राइस है, प्राइस है। ओके थिंक, oh okay sorry, you just have to give the what index number 2। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, फ्रूट नेम व्हाट, पाइनएप्पल, प्राइस 350, क्वांटिटी इन केजी 3। आपको सेकेंड रो का पूरा फाइंड आउट कर रहा विद द हेल्प ऑफ लॉक। ओके लॉक मेथड क्या कर रहा है, आपको सेकेंड इंडेक्स का पूरे वैल्यूज दे रहा हूं, पूरी रो रिकॉर्ड की वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ऑरेंज का फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू गो लाइक दिस, df डॉट लॉक ऑफ व्हाट 3। एंटर करें, आप यहां पर देख सकते हैं फ्रूट नेम ऑरेंज, प्राइस 75, क्वांटिटी इन केजी 1.0। ओके क्लियर एजिस, ओके। अब सपोज आपको 2 वैल्यूज एट अ टाइम फाइंड आउट करना है, then you can go like this, like df dot loc, then you have to go with 2 square brackets, and यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, एक तो वैल्यू है आपकी लाइक फर्स्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना है और एक थर्ड इंडेक्स फाइंड आउट करना है आपको। तो 1,3 दे सकते हैं, ठीक है। 1,3 देने से क्या होगा, बनाना एंड ऑरेंज की इंडेक्स वैल्यू आपको फाइंड होगी लाइक दिस 13, बनाना प्राइस 100, क्वांटिटी इन केजी 1.5, ऑरेंज 75, 1.0। ओके क्लियर एजेस, हाउ टू गेट द इंडेक्स, हाउ टू गेट अ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं और एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके बताऊंगा आप लोगों को, बोलिए। बनाना और ये जो इंडेक्स नंबर्स है, मतलब इंडेक्स नंबर्स ये सेम है, उसमें भी सेम 0 किसमें, हाँ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट उन्हें क्या करता है, इंडेक्सिंग क्रिएट करता, यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ नंबर्स हियर। तो बाय डिफॉल्ट उन्हें क्या करता, आपको
इंडेक्स क्रिएट करके ही देता हूं। अगर आपको इंडेक्स की प्लेस पे कोई भी दूसरी वैल्यू डालना है तो यू हैव टू गो लाइक दिस, लाइक यहाँ पर मैं इंडेक्स की प्लेस पे क्या डाला, मैं डे 1 डे 2 डे 3 डाला विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ओके, क्लियर है चीज? Yes. Next, again I will create a data frame for you so that you can understand very well. ठीक है, data equal to, ठीक है, with the help of dictionary, डिक्शनरी से हम अच्छी तरीके से डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन एंड कैलोरीज का एक डेटा क्रिएट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं दूंगा कैलोरीज, और लिस्ट में दूंगा मैं यहाँ पर लाइक 420 कॉमा नेक्स्ट 380, नेक्स्ट डे 380 और थर्ड डे 390। ओके, कॉमा दूंगा, नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरेशन, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं 50 दूंगा, ड्यूरेशन 50, लाइक ड्यूरेशन इन मिनट्स, 50 मिनट्स में आप कितना 420 कैलोरीज बर्न करें। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन फ्लावर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं लिस्ट में, लिस्ट के अंदर यू कैन नॉट यूज द फ्लावर ब्रैकेट। फ्लावर ब्रैकेट मींस एक डिक्शनरी के अंदर यू कैन यूज द डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर आप कोई सा भी डेटा कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। Like either you can use the list data structure or you can go with the tuple data structure or you can use the what set also, set के साथ साथ आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सेट, आई थिंक सेट नहीं यूज कर सकते क्योंकि सेट ऑल्सो एनक्लोज विथ फ्लावर ब्रैकेट, तो यू कैन नॉट यूज सेट इन डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पर मैं और एक वैल्यू दूंगा लाइक 45। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा df और आई कैन गो विथ cl इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं मेरा डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा। ओके, कॉमा इंडेक्स में आ दूंगा, इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट के अंदर। तो ये जो इंडेक्स में यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं क्रिएट करा तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा मेरे को 0 1 2 3। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर डे 1 डे 2 और डे 3 क्रिएट करना चाहूँ तो आई कैन गो लाइक दिस, डे 1 कॉमा डे 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप कॉमा देके डे 3। ठीक है, डे 3 ड्यूरेशन 50 था और 420 कैलोरीज बर्न करे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, प्रिंट ऑफ व्हाट, CL एंटर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप एक सिंपल आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ। देखिए जहां पर आप डे 1 में देख सकते हैं 420 कैलोरीज, 50 मिनट ड्यूरेशन था आपका। अब यही फाइल आपको लोड करना है। ठीक है, तो बेसिकली pandas इज नथिंग बट इट इज अ ETL प्लेटफॉर्म। ठीक है, लाइक यू आर इंपोर्टिंग अ डेटा फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स लाइक यू कैन इंपोर्ट अ डेटा फ्रॉम TXT फाइल और CSV फाइल, वो चीज मैं बताऊंगा हाउ टू इंपोर्ट दैट। तो बेसिकली हम क्रिएट तो करें, यहाँ क्रिएट करके वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड यू हैव टू लोड दिस डेटा। जो भी आप ट्रांसफॉर्म करें, जो भी आप क्रिएट करें, वो क्या करना है, आपको लोड करना है इन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट। ओके, सपोज ये जो फाइल है ये मेरे को CSV फॉर्मेट में मेरे को लोड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, PD और यू कैन गो, हाँ, PD डॉट टू CSV। ठीक है, तो आई थिंक PD डॉट टू, ओके, तो यहाँ पर PD डॉट रीड CSV है, टू डेट एंड टाइम। ओके, एक मिनट, टू CSV read CSV is different।
2_CSV ट्राई करेंगे हम, CSV, ओके, एंड देन यू हैव टू गो विद द योर डेटा फ्रेम नेम, डेटा फ्रेम इज नथिंग बट CF, ठीक है। तो यहाँ पर अरे सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना है मालूम, यू हैव टू टेक दी वेरिएबल फर्स्ट, ओके, ठीक है, डॉट टू CSV, यहाँ पर आप बताता है, मैं यहाँ पर PD ले लिया था, यू हैव टू गो विद द वेरिएबल नेम, ओके, वेरिएबल जो भी हमारा डेटा फ्रेम जिसमें भी स्टोर है उसका आपको लेना है वेरिएबल, एंड देन यू हैव टू पुट डॉट, डॉट के बाद यहाँ पर आपको CSV लेना है, टू CSV, अगर आपको CSV में कन्वर्ट करना है तो यू कैन गो विद द CSV, अगर आपको ये फाइल एक्सेल के अंदर सेव करना है तो यू कैन गो विद द एक्सेल, अगर आपको HTML JSON फाइल में कन्वर्ट करना है तो यू कैन गो विद द एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, okay, so here I want to go with CSV, okay, next what you have to do, you have to give the file name, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा calories .csv, तो ये जो फाइल आप सेव कर रहे हैं कहां पर सेव होंगी, ये पाइथन डायरेक्टरी के अंदर, हियर, ओके, यहाँ पर आपकी फाइल वो सेव होंगी, तो यहाँ पर मैं एंटर जैसा करूंगा ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर calories.csv की फाइल एक क्रिएट होंगी, ठीक है, calories.csv कहीं दिख रही है आपको, रिफ्रेश करेंगे एक बार, हाँ यहाँ पर आगे देखिए calories.csv, ओके, तो जो भी आपका डेटा था वही आपका यहाँ देखिए, कैलोरीज, ड्यूरेशन, डे 1, इंडेक्स 420/50, ठीक है, जो भी आपका डेटा था, that's how you have to load the data in CSV, means with pandas, ठीक है, जो भी आपका डेटा फ्रेम है, आप सपोज यहाँ पर मेरा डेटा फ्रेम था दिस वन, ओके, DF, तो यहाँ पर मैं प्रिंट ऑफ DF करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूट नेम, प्राइस, क्वांटिटी इन केजी, ओके, आपको यही फाइल आपको क्या करना है, यू वांट टू सेव एज एक्सेल, ठीक है, और आपको ये फाइल कहां पर स्टोर करना है, यू हैव टू स्टोर इन योर लोकल सिस्टम, ओके, तो आई विल शो यू, यहाँ पर मेरी कोई भी एक डेटा DF की फाइल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करूंगा हाउ टू सेव दिस फाइल इनटू योर लोकल सिस्टम, तो सिंपल है, यू हैव टू गो विद DF डॉट टू अंडरस्कोर, you can go with the CSV, you can go with the Excel, ठीक है, HTML JSON, I want to go with Excel, सिंपल है, आप यहाँ पर Excel यूज करें, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है your file destination, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा C है, C के अंदर क्या है, यूजर्स, ठीक है, यूजर्स के अंदर सैयद R, देन डेस्कटॉप, ठीक है, ये कल आप लोगों को बताया था मैं, हाउ टू मैनिपुलेट दिस वन, ठीक है, हाउ टू गो विद दिस वन फाइल डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, ओके, तो माय फाइल नेम इज व्हाट, डेटा डॉट XLSX, ठीक है, दिस इज द एक्सेल फाइल एक्सटेंशन, तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यहाँ पर फाइल आ गई, और इसको ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू विल गेट the same file here, okay, same apple है, price 1, banana 100, pineapple 350, orange 75, okay, clear है चीज, तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम और हाउ टू लोड डेटा फ्रेम इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, लाइक CSV में भी देखे हम और एक्सेल के अंदर भी हम देखे, ओके, सिंपल है, यहां तक कुछ डॉट्स है आप लोगों को? नहीं सर, मेरे को एक छोटा ये सवाल है, हम अगर अपने एक लाइब्रेरी पर अभी pandas इंस्टॉल करें ना, तो ये नोटबुक में यूज कर सकते हैं, दूसरी नोटबुक में यूज, हाँ, यू कैन यूज, इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं इंस्टॉल नहीं, यू हैव टू इंपोर्ट, अगर आप न्यू नोटबुक में यूज करें तो इंपोर्ट pandas as PD करना पड़ता, ठीक है, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल लाइक पिप इंस्टॉल, आपको नहीं यूज करना है, सिंपल इंपोर्ट pandas बोल के आपको यूज करना रहता हूँ, ठीक है, अगर एक सेशन में आप मल्टीपल टाइम pandas लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप क्यों एक बार इंस्टॉल कर लेते हो, क्यों आप बार बार इंस्टॉल कर लेते बैठते, ठीक है,
क्लियर है? ओके, अब सपोज यहाँ पर मेरी फाइल है, राइट? हियर आई एम हैविंग अ फाइल. हाउ टू रीड दिस फाइल? If you want to read this file, you have to go like this, like df dot. Here, to CSV is nothing. To Excel is nothing, but we are loading a file in different destination location. Okay, but read CSV is nothing but to read a file from different destinations in Python. Okay, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा to load a file from to load a file to file destination. To load a file destination. To load a file to load a file in local system. Okay, local system. यहाँ पर मैं लिखूंगा to read a file from local system. ओके, सो सेम ये वाली फाइल मेरे को रीड करना है, तो यू हैव टू गो विथ रीड df डॉट. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यू डोंट हैव टू गो विथ df बिकॉज ये df हमारा ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है. हियर आई एम क्रिएटिंग अनदर डेटा फ्रेम कॉल्ड डेटा. डेटा इक्वल टू यू हैव टू रीड अ फाइल, यू हैव टू गो विद द pd डॉट रीड csv. ठीक है, रीड CSV. अगर CSV फाइल है तो यू हैव टू गो विथ रीड CSV. अगर एक्सेल फाइल है तो यू हैव टू गो विथ रीड एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल. देन यू हैव टू प्रोवाइड द डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल. ओके, लाइक c/users सैयदार. ठीक है, नेक्स्ट डेस्कटॉप. नेक्स्ट फाइल का नेम क्या है? डेटा डॉट एक्सेल xx. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है डेटा डॉट एक्सेल SX. ठीक है, एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर डेटा फ्रेम, डेटा मींस जो भी आपकी फाइल थी वो डेटा के अंदर स्टोर हो गई. ओके, तो सिंपल यहाँ पर मैं डेटा और शिफ्ट एंटर करूंगा, यू विल गेट ऑल दी वैल्यूज. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स भी थे, और जब भी आप एक रीड फाइल कर रहे तभी भी वहां पर एक इंडेक्स क्रिएट हो रहा.